ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. In the circuit shown in figure, the capacitor C is initially uncharged and key K is open. In this condition, a current of 1 ampere flows through 1 ohm resistor. The key is closed at t equal to t naught. Which of the following statement is correct? The value of resistance R is 3 ohm. अच्छा चलो देखेंगे वो तो. देखिए इस क्वेश्चन को, शुरू में ये की ओपन है तो ये वाला सर्किट तो इसको अभी भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि फॉर व्हेन दिस इज ओपन नो करंट इज गोइंग टू फ्लो इन दिस, ठीक है, नो करंट इज गोइंग टू फ्लो इन दिस. टी को टी नॉट पे सर क्लोज कर रहा, तो फॉर टी लेस देन टी नॉट दिस इज यूजलेस, ठीक है. आपका सर्किट अभी यही है. सपोज को 15 वोल्ट बैटरी जो है, सपोज इट इज ड्राइविंग करंट आई, राइट. So when I is coming here, it is bifurcating into, ये तो 1 एम्पियर दे रखा है. अब बाकी जो है I1 करंट फ्लो हो रहा है, बाकी जो करंट फ्लो तो सो I is getting bifurcated into 1 एम्पियर एंड I1 इधर फ्लो कर गया. So I is basically I1 plus 1 एम्पियर, राइट. I1 plus 1 एम्पियर, तो ये करंट हो गया, ठीक. ये दे रखा है आपको 1 एम्पियर इधर से फ्लो हो रहा है, ये दे रखा है आपको, ठीक है. अब किरचॉफ्स लॉ लगा लेते हैं. लेट्स अप्लाई किरचॉफ्स लॉ. दिस इज 1 एम्पियर, दिस इज I1 एंड दिस इज I1 plus 1 एम्पियर. We apply Kirchhoff's law here. If I apply Kirchhoff's law here, Kirchhoff's voltage law. यहाँ शुरू करेंगे. So you are moving from negative terminal of the battery to positive terminal. When you move from negative terminal of the battery to positive terminal, you have a potential rise and vice versa. तो यहाँ पे potential rise हो रहा है and I am taking potential rise as positive. करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के क्रॉस मूव करेंगे तो पोटेंशियल का फॉल होगा. We have R into I1 plus 1. ठीक है. And then you have what? We are moving in the direction of current. So you have 1 into 1. So it's 1. और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल का फॉल होगा. ऐसे आ जाएगा. अब एक किरचॉफ्स लॉ यहाँ भी लगा लो. अब इस डायरेक्शन में जाओगे, इसको भूल जाओ, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा लो. So you have potential rise 5, then you are moving in direction opposite to current. 1 एम्पियर इधर फ्लो हो रहा है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये पोटेंशियल का राइज हो जाएगा. एंड हियर 3 into I, पोटेंशियल का फॉल 3 into I1. You are moving in the direction of current equal to 0. So from here what do we have? I1 is 2 ampere. So ये तो सही है. The value of resistance R is 3 ampere. वो यहाँ से निकल जाएगा. I1 is 2 ampere. ऐसा पुट करो, I1 equal to 2 ampere पुट कर लो. ये 15 minus I1 is 2 ampere, so it is 3R minus 6. So R is 15 में से 6 गया 9, 9/3, 3 ओम. ए भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है. ए भी सही है और बी भी सही है ना. ए एंड बी बोथ आर करेक्ट. अब क्या पूछ रहा है देखो. At t equal to t naught plus 10.2 microsecond, the current in capacitor is this. At t equal to infinity, the charge in capacity 12 microcoulomb. ये वाला तो तुरंत निकल जाएगा देखो. At t equal to infinity, charge in capacity 12 microcoulomb, ये तुरंत निकल जाएगा. देखो, whenever you have RC circuit, then at t equal to 0, the capacitor behaves as a short circuit. And at t equal to infinity, the capacitor behave like an open circuit. ये चीज हम लोग देखते भी हैं. जब t equal to 0 होगा, t equal to 0 पे से आप देखो, you have RC circuit like this, a switch,
and a battery. This is EMF E, this is R and this is C. तो I क्या होता है, अगर आप याद हो आपको, so at t equal to 0, केवल सिर्फ यही पूछ सकता है ना आपको, यार I is E by R. So that means it looks as if capacitor is a kind of short circuit, right? And at t equal to infinity, I is 0. That means capacitor behave like an open circuit. Capacitor behave like an open circuit. That's why your I is 0. In general भी true होता है. At t equal to 0, just after closing the switch, the capacitor behaves like a short circuit, and at t equal to infinity, the capacitor behaves like a open circuit. Capacitor जो है open circuit की तरह behave करेगा. तो at t equal to infinity तुरंत ही निकाल लोगे. Capacitor open circuit की तरह behave करेगा. मतलब you don't have any current flowing in this. और पहले का हम लोग निकाल चुके हैं, ये आपका कितना था जी, 3 एम्पियर नहीं, ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है. So when the capacitor behaves like open circuit, you can neglect this branch and you can find out the current. तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है. अब चूंकि इसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, इसके क्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, सो देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस तभी होता है ना जब करंट फ्लो करता है. चूंकि ये ओपन सर्किट पर बिहेव करेगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा. चूंकि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा तो रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ये चूंकि चार्ज रहेगा तो you do have potential difference across capacitor. So potential difference across capacitor is same as potential difference across these 2 points, because potential difference in this resistor is going to be 0 since there is no current. तो जो कैपेसिटर across potential difference होगा वो यही होगा जो इन दोनों के बीच में होगा. इन दोनों के बीच में पोटेंशियल वही होगा जो यहाँ होगा, ठीक है, जो यहाँ होगा. और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 3 into 2. So potential difference across capacitor is going to be this potential difference, and this is same as this potential difference, and this potential difference is IR. So 3 into 2, 6 coulomb, 6 volt, 6 volt. ठीक है. आ कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2 microfarad. So charge will be C into V, 12 microfarad, microcoulomb sorry. तो ये डी भी सही है, ठीक है, डी भी सही है. अब क्या पूछ रहा है, एट टी इक्वल टू 7.2 माइक्रोसेकेंड, टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रोसेकेंड, मतलब स्विच क्लोज करने के 7.2 माइक्रोसेकेंड पे क्या होगा, ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग. उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए एक काम करना पड़ेगा आपको. ये जो सर्किट है पूरा, इसका हम लोग को एक थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे. इसका हम लोग थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल लेंगे. मतलब इस सर्किट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाय से वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन. इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे वी टी एच और आर टी एच से, एंड देन यू हैव कैपेसिटर एंड रजिस्टर, ठीक है. अब वी थेवेनिन आर थेवेनिन कैसे निकलता है, वी थेवेनिन इस सर्किट को हम लोग एक इक्विवेलेंट सर्किट इधर ड्रा करते हैं, बढ़िया दिखेगा. इस सर्किट को ये जो पार्ट है इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे बाय, ये मान लो ए है और ये बी है, तो ए और बी के ऊपर वाले सर्किट को हम लोग एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे. We replace it by Thevenin equivalent circuit. I'll tell you how to find Thevenin equivalent. Thevenin equivalent कैसे निकालते हैं, काफी यूजफुल रहता है, वो आपको हम बताते हैं. इसी सवाल के थ्रू बता देंगे आपको हम. C is 2 microfarad. चलो कोई नहीं, वो रहने दो. तो V Thevenin and R Thevenin. अब देखो वी थेवेनिन आर थेवेनिन के कैसे निकालते हैं. मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, वो इस सर्किट को कैसे देखेगा,
सो वी आर रिप्लेसिंग दिस होल सर्किट बाय वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन। पहले बताते हैं आर थेवेनिन कैसे निकलता है। हम लोग को इस सर्किट का आर थेवेनिन निकालना है। तो हाउ डू यू फाइंड आर थेवेनिन? यू open close all voltage source या short all voltage source। राइट, ए और बी के बीच में हम लोग को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है इसका, ठीक है। तो जितना ही वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर दो और जो करंट सोर्स है उसको ओपन कर दो। तो 12th क्लास तक तो करंट सोर्स पढ़ते नहीं हो तुम लोग, तो करंट सोर्स के बारे में हम यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं। यही ग्रेजुएट बच्चा होता तो हम लिखते हैं शॉर्ट ऑल वोल्टेज सोर्स एंड ओपन ऑल द करंट सोर्स। तो यू डोंट हैव एनी एक्सपोजर ऑफ करंट सोर्स एट दिस लेवल, तो उसका नीड नहीं है। तो आप क्या करो, जितना ही वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर दो और शॉर्ट करने के बाद यू जस्ट फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी लुकिंग इन दिस पार्ट। इसको मत कंसिडर करना, आप ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकाल लो। ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकाल लो। आर कितना आया था जी हमारा? आर आया था 3 ओम। तो रेजिस्टेंस क्या आ गया? 3 ओम, 1 ओम, 3 ओम। ये तीनों पैरेलल में है आपका, ये तीनों पैरेलल में है। सो आर थेवेनिन विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/3 प्लस 1/1 एंड 1/3। यही है ना? यस। सो दिस विल बी व्हाट? This will be 2/3 plus 1, 5/3. So R Thevenin is, ठीक है ना? या ठीक है। 2/3 plus 1, 5/3, 3/5, ठीक। सो R Thevenin is 3/5 ओम। ऐसे भी क्लियर है, मतलब 3 ओम पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट 3/2 हो जाएगा, और 1 ओम फिर पैरेलल में है तो 3/2 इंटू 1 अपॉन 3/2 प्लस, हाँ ठीक है। सो R Thevenin भी कहा। अब देखो V Thevenin कैसे निकालते हैं। V Thevenin is basically open circuit voltage between A and B। ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब ये है, ए बी का जो ये लोड साइड हो गया इसको आप ओपन कर दो। ए बी को मान लो कि ए बी के नीचे कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ओपन कर दो, इसको ओपन कर दिया, ठीक है। और ओपन करने के बाद ए और बी के बीच में क्या वोल्टेज होगा वही आपका वी थेवेनिन हो जाएगा। तो हम निकाले हैं I1 कितना था? I1 तुम्हारा कितना आ गया था जी? 2 एम्पियर आया था ना। तो ओपन सर्किट वोल्टेज का मतलब है कि जैसे आप ए और बी के जो राइट साइड, मतलब एक्चुअली ये है वर्टिकल है, ए और बी के नीचे जो है उसको ओपन कर दो, उसको हटा दो और फिर ए और बी के बीच में आप वोल्टेज निकाल दो। तो ए और बी के बीच में वोल्टेज क्या होगा? ए और बी के बीच में वोल्टेज होगा वो हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 2 मतलब 6 वोल्ट 6 वोल्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे मैं ड्रॉ करूँ, इसको ऐसे ड्रॉ करो, 6 वोल्ट आ गया, मतलब ये आपका हायर साइड है, ये लोअर साइड, तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, 6 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट। सो फाइनली व्हाट वी हैव इज या ठीक। सो वी हैव द सर्किट 6 volt and this is C, और R Thevenin और R जुड़ जाएगा, 3 + 3 18/5 हो गया। It is 18 ओम, 6 वोल्ट। अब आपको करंट निकालना है, तो करंट का फार्मूला पता है आपको, आरसी से, तो सिंपल आरसी सर्किट हो गया ना, ये तो सिंपल आरसी सर्किट हो गया। I is what? P/R
where t is the time interval from closing the switch के बाद जो t है वो टाइम t है। तो स्विच क्लोज करने का जितना टाइम बीता है दैट इज टाइम t, ठीक है। तो एट t इक्वल टू t0 प्लस 7.2, तो स्विच क्लोज करने के बाद 7.2 माइक्रोसेकंड ही बीता है ना। तो E बाई आर, E कितना है जी 6 वोल्ट, R कितना है 18/5, तो 5 गुने 18 हो गया, ठीक है, सॉरी 18/5। E is 6 वोल्ट and R is 18/5 e to the power minus T by RC, T is 7.2 microsecond, R is 18/5 और C is 2 माइक्रोफैराड। ये कट गया ऐसे, ये 3.6 हो गया, 3.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा 18, 3.6 इंटू 5 18 हो जाएगा, तो 3.6 इंटू 5 18 हो गया, तो कट गया, तो कितना रहेगा 18, 5/3 e टू द पावर -1। और e टू द पावर -1 का वैल्यू दे रखा है तुमको, e टू द पावर -1 का वैल्यू दे रखा है दैट इज 0.36, ये हो जाएगा 0.12, ये हो जाएगा 0.12 इंटू 5 12×5 60, 0.6 एम्पियर। सही है, ये भी सही है, चारों सही है इसमें। All the 4 are correct. All the 4 options are correct. समझ में आ रहा है आपको? ये थेवेनिन इक्विवेलेंट वाला क्लियर होना चाहिए आपको। You must know what is थेवेनिन इक्विवेलेंट। काफ़ी यूजफुल होता है इसमें, समझ लो। बात थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालो तो ये पूरा सर्किट सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ तक आ गया ना जी, इजी आ गया। अब ये सिंपल आरसी सर्किट हो गया जिसका फार्मूला हम लोग को पता है, ठीक।